Hello, friends. I hope you are doing well. Great. Let's read a new story. जहाँ पर हम आज न्यू idioms और vocabulary सीखेंगे. तो आइए देखते हैं हमारी न्यू स्टोरी. Our story name is The Honest Farmer and the Talking Tree. Once upon a time, in a small village, there lived a poor farmer. Life was not easy, but he always believed honesty is the best policy. आई होप ये आपको समझ आ रहा है. नो नीड टू एक्सप्लेन. अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगती है तो आप मुझे जरूर बताइए कि मैम हमें वो लाइन समझ में नहीं आई है. तो लेट्स रीड वंस अगेन. Once upon a time, in a small village, there lived a poor farmer. Life was not easy, but he always believed honesty is the best policy. Idioms is used here. Honesty is the best policy. One day, while cutting wood, he found a magical talking tree. The tree said, "If you take care of me, I will help you when you are in trouble." Means the farmer was cutting the wood one day and he found a magical talking tree. That time the tree said, "If you take care of me, whenever you will need me, I will help you." Got it? The farmer agreed and never broke his promise. He watered the tree daily and gave it love. The idiom is used here, broke his promise. Years later, when a drought hit the village, people were in hot water because there was no food or water. The farmer prayed to the tree and suddenly the tree gave fruits and shade to everyone. Here idioms is used in hot water means trouble. You can see the sentence people were in hot waters mean people were in trouble. When the drought hit the village means there was no water or food, and then the tree gave them fruits and shade to everyone because the farmer prayed to the tree. आई होप आपको स्टोरी समझ आ रही होगी. फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी. The villagers were all ears when the farmer explained how kindness and honesty helped him. They realized that what goes around comes around. Means here the idioms are used. All ears means listening carefully. यहाँ पे क्या है, विलेजर्स जो है वो सब सुन रहे थे. व्हेन द फार्मर एक्सप्लेन्ड हाउ काइंडनेस एंड ऑनेस्टी हेल्प्ड हिम मीन्स फार्मर की कैसे हेल्प की काइंडनेस और ऑनेस्टी ने. दे रियलाइज्ड दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड मीन्स योर एक्शन कम बैक टू यू. तो यहाँ पे उनको समझ आया कि हमारे जो कर्म है, जो एक्शन है, वो हमें वापस मिलते हैं, वापस आते हैं आपके पास. लेट्स रीड वंस अगेन विदाउट एक्सप्लेनिंग. द विलेजर्स वर ऑल ears when the farmer explained how kindness and honesty helped him. They realized that what goes around comes around. Start reading with me. From that day, the farmer was as happy as a clam, because not only was he safe, but he also saved the whole village. Here you can see the idioms as happy as a clam means very happy. From that day, the farmer was very happy because not only he was safe, but also he saved the whole village. And let's see the moral of the story. The moral of the story is
Be honest and kind because good deeds always come back to you. Never break your promise means ऑनेस्ट बने रहिए, काइंड बने रहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म जो है हमारे पास वापस आते हैं, हमें उसका फल जरूर मिलता है. सो देन नेवर ब्रेक योर प्रोमिसेज. आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी. यहाँ पे मेन मकसद आपको स्टोरी रीड कराना नहीं है, मेन मकसद है आपकी वोकेबलरी और इडियम्स पे फोकस करना, ताकि हम इजीली सेंटेंस समझ पाए, हम उनको बोल पाए. सिर्फ आप रीडिंग करने की हैबिट डालिए. आप ये मत सोचिए मुझे बोलना है, मुझे सीखना है. आप सिर्फ रीडिंग करने की हैबिट डालिए और फिर आप रिजल्ट खुद पे खुद देखिए. जब हम बोलते हैं तो वो हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है, और जब भी आप किसी को भी सुनोगे तो आपको वो रिकॉल होती है वो चीज़ें. और आप जब भी एक वर्ड भी अगर आप अपने मुंह से रोजाना एक वर्ड सिर्फ आप बोलना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए. सेंटेंस को एक सेंटेंस आप कैसे भी करके आप बैठ के कहीं भी मिरर में देखने की भी नीड नहीं है. ये क्या काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा रही है, उसको रीड करना स्टार्ट कीजिए, उसको बोलना स्टार्ट कीजिए. इडियम को यूज कीजिए आप 3 टाइम, सिर्फ उसको एक बार बोलिए. जो भी इडियम्स मैंने लास्ट स्टोरी में भी आपको बताए थे, एक बार सिर्फ उनको रीड कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए. सिर्फ आपको ये नहीं है आपको रट्टा मारना है, आपको सिर्फ उनको रीड करना है, बोलना है 3 टाइम, 5 टाइम सिर्फ. फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको याद करें. आप देखिए आपको वो खुद पे ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई होप आपको समझ आया होगा. मैंने यहाँ पे जो है वो आपके जो इडियम्स यूज हुए हैं वो भी यहाँ पे लिस्ट तैयार की गई है. यू कैन सी, यू कैन रीड, यू कैन राइट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. एक बार आप बोलना स्टार्ट कीजिए, सिर्फ बोलना स्टार्ट कीजिए. उससे क्या होता है कि उससे हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि कैसे इसको बोलते हैं. अगर आप सोचोगे ठीक है मैंने मन ही मन में इसको रीड कर लिया है, मैंने याद भी कर लिया है, ठीक है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के सामने जाते हैं, जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पता चलता है कि वो बोलना क्यों ज़रूरी था. क्योंकि आपको अपनी टंग को भी क्लियर करना है. जब आप खुद से बोलेंगे, आप घर में किसी के भी सामने बोल के देखिए, आप किसी के भी सामने चाहे उसको समझ आ रहा है या नहीं, उससे क्या होता है उसके अंदर आप में जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. तो वो ही आपको करना है. तो आई होप आपको वोकेबलरी जो है वो इडियम समझ आए होंगे. अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैंने बीच में स्टोरी को इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मुझे वहाँ पे इतनी नीड नहीं लग रही थी कि वो हमें सिर्फ हमें बोलने की आदत डाल दी है, उसको उसको रीड करने की आदत डालनी है. हमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, पहले हम उसको रीड करना तो सीखे, हम उसको बोलना तो सीखे, उसके बाद. थैंक यू सो मच. आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू so much.